To all of you. Okay, got it. A very good morning to all of you, and must thank everyone for having taken the time out to joining us in making this presentation. This is a repeat presentation actually of the same one we did earlier in November. I think it was end October or early November, where we had presented uh, the same in Faridabad to a live audience, and we thought that this being us being at a stage in the economy and the stage in अभी पी चुका है तो market, शायद यूवी stage in the market that we felt that it was important to try to reach out to other people who may have missed missed that meeting. So we thought that online was a good medium, and we hope that we'll be able to convey uh, whatever we were able to during that meeting. We've updated some slides, but some slides continue to remain unupdated. Hopefully, you'll bear with us for that. So, with that, I resume this presentation. Good morning. Uh, uh, the phoenix rises. Now, the word phoenix means you know a body which rises from the ashes. Where see, COVID के time पे India was written off as a country. मतलब एक if you remember कि imperial college की reports जब जब COVID शुरू हुआ था, जब हम lockdown में गए थे, तो Imperial College London had written a report where they said that by July of 2020 there will be about 40 lakh people dead in India. 40 lakh people dead means a lot. Uh, the country was written off. Our stock markets fell by almost say 35-40% in a space of a month. The economy crashed. The world had written us off. Uh, कोई हर कोई all large economies were giving stimuluses like left, right, and center. Uh, every citizen was receiving money in his bank account uh, while they were in lockdown. Our country didn't have the money to pay anyone. Of course, we had announced a stimulus of over 2 lakh crores, but आप सबको पता है कि कितना पैसा actually आया. Uh, the government, in its own wisdom, tried to attack areas where they thought that the stimulus was required the most, and rightfully, now when we look at the rest of the world and we look at India, I think the difference in management of the economy, the management of the country is now uh, very clear that who did the right things and who didn't do the right things. Uh, the phoenix as a metaphor that I've used here means to emerge from a catastrophe stronger, smarter, and most powerful. And that is what India is has demonstrated, and India and the foundation that we have laid here for this decade is so strong that I think we will be a different country, a very different country from what we are today in the next over the next 10 years. This presentation is basically about that. This slide is about the Nifty's performance over the last 10, 5, 3, and 1 year uh, compared to uh, the rest of the world, the emerging markets. The MSC World Index,
The MSCI World Index is this in the light gray, and the MSCI Emerging Market Index is in the lightest gray. So India in all time frames stands out well above all the rest. And what we feel is that this performance is continuing to grow stronger and stronger as we proceed into the next as we proceed through this decade and into the next. Now, what are the reasons of this phenomenal performance versus the rest of the world? India, there are 4 that we have listed out. A, जो Indian companies हैं, जो भी Indian companies हैं in the listed universe, उनकी जो earnings growth है, उनके जो profit growth है, वो बहुत ही strong है इस time. नया जो credit cycle है, वो शुरू हो रहा है. अब credit cycle का मतलब क्या है? Credit cycle का मतलब है जब नए loans लिए जाते हैं. अगर आप सबको पता है कि पिछले 10 साल के अंदर हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ही तकलीफ से गुजरा है. We have virtually they had provided for nearly 10 lakh crores plus of NPAs, जिसमें से I think they would have easily written off about 40%. Of course, I don't know the exact figures, but this is my estimate. Now, any businessman, he will not expand his business unless he sees light at the end of the tunnel or he sees growth coming back. I will explain to you what we are seeing in the credit cycle. And because of this credit cycle, a new investment cycle is beginning, which will lead to accelerated household incomes, which is the story that India is all about. पिछले लास्ट डेकेड के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेके 2020 तक जो इंडिया की ग्रोथ रही, इंडिया की निफ्टी कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है, दैट इज 6.7% एनुअलाइज्ड ग्रोथ. इन द लास्ट 2022 से लेके 2024 तक जो हम लोग एस्टिमेट कर पा रहे हैं from whatever we talk to the companies, this growth has gone up virtually 2.5 times, which for a large economy like India is going to have such huge beneficial effects that we can't even imagine. अगर आप ये साइकिल देखेंगे तो in 2020 and 2021 the credit growth means the growth in new loans given by banks and financial institutions. We had hit a multi-decade low. 1995 से लेके आज तक का डेटा में ये जो फेज था इकोनॉमी का 2020-21, that was the lowest that we could ever gone. Now we are seeing green shoots, we are seeing the credit cycle going up, and what we feel is that ये 2006 के अंदर जो 30% तक 35% तक पहुंच गया था, वो अभी तकरीबन 14% के करीब 17% के करीब का हो गया है. ये डेटा थोड़ा सा पुराना है और ये जो है हमारे को लगता है 20-25% तक जब पीक करेगा ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसमें जाएगा. विच मीन्स दैट कि हमारे बैंक्स जो हैं इस समय उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं एकदम स्ट्रॉन्ग हैं. जो इंडस्ट्री डिमांड करेगी वो बैंक्स जो हैं वो इजीली लेंड कर पाएंगे. आज ही की खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू 10,000 करोड़ का एक दिन के अंदर इकट्ठा कर लिया.
और कौन कौन किस किस ने सब्सक्राइब किया? प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, FII, सब ने उसको सब्सक्राइब किया। क्या ब्याज की दर थी? 7.57%। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस रेट पे बोरो करती है उससे केवल 0.15% ऊपर। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जो साइकिल है ये कितना पावरफुल हो सकता है। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ही बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है कि हम जो ये वाला डेकेड है उसके अंदर जो आज हमारी इकोनॉमी है एट 3.5 ट्रिलियन, वो हम, मुझे लगता है कि वी विल बी मोर देन डबलिंग इन द नेक्स्ट 7 years. आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने ये परचेज मैनेजर्स इंडेक्स PMI के बारे में जरूर सुना होगा। PMI जो इंडेक्स है वो फ्यूचर जो परचेज मैनेजर कितना ऑप्टिमिस्टिक है अपनी कंट्री के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में, उन काफी सारे परचेज मैनेजर्स का सर्वे होता है और ये इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है। 50 के ऊपर अगर रैंकिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री के जो परचेज मैनेजर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी कंट्री की या अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, और वो ऑप्टिमिस्टिकली ऑर्डर कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इंडिया इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से 54, 54.7, 54.6, 53.9 और 56.4 ये इंडिया के इंडेक्स के रैंकिंग्स हैं। और चाइना जिसका हालत बहुत खराब है वो 50 के पास एवरेजली 50 से नीचे ही है फॉर द ईयर। ब्राजील ऊपर है क्योंकि इट इज अ कमोडिटी ओरिएंटेड इकोनॉमी और इस समय कमोडिटी साइकिल बहुत स्ट्रांग है। और इंडोनेशिया जो कि हमारे हिसाब से इंडिया का सबसे सिमिलर इकोनॉमी है, मतलब अगर हम किसी इकोनॉमी को इंडिया के साथ कंपेयर करें तो वो इंडोनेशिया है। सिमिलर डेंस पॉपुलेशन, of course Indonesia is more dependent on commodities and India is more dependent on internal consumption for its growth. So we are seeing a lot of optimism, and this optimism means that the purchase managers of the country are willing to be more optimistic, and that is where we feel that the start of the new investment cycle is there for all of us. Now उसके बाद अगर हम अगर ये इंडस्ट्रियल साइकिल अगर ये इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होगा तो ये जो स्लाइड है, एक्चुअली ये स्लाइड मेरी प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, बिकॉज जो ये हम पीछे तीन चार फैक्टर्स मैंने जिनके बारे में आपको बताया वो will result in higher household incomes. ये जो पहला ट्रायंगल है, पहली फिगर है, ये 2005 की है। इसमें जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। द लोएस्ट विच इज, अगर हम 2005 में टोटल हाउस होल्ड्स देखेंगे तो 21.9 करोड़ हाउस होल्ड्स थे उस समय। मैंने फॉर दिस पर्पस हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया है बाय 4 और वो जो फिगर है वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स डिपिक्ट की है। तो 2005 के अंदर हमारे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो थे कंट्री के अंदर वो 21.9 करोड़ थे। 69% of those 21.9 crores were in the lower segment. Now, what do we mean? What do we mean by lower segment? By lower segment, we mean जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे थी, एनुअल इनकम 2.5 लाख से नीचे। तो 69% ऑफ इंडिया की इनकम जो थी वो बिलो 2.5 लाख पर हाउस होल्ड
पर इंडिविजुअल नहीं मैं कह रहा हूं, पर हाउसहोल्ड कह रहा हूं। और जो लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स थे वो 23% थे। तो आप मान लीजिए कि 21.9 करोड़ हाउसहोल्ड में से 20.1 करोड़ हाउसहोल्ड्स वर आइदर लो और लोअर मिडिल। And by lower middle, I mean that the income of those households were less than 5.5 lakhs and more than 2.5 lakhs per year per household. ये हालत थी हमारी कंट्री। अपर मिडिल और हायर इनकम हाउसहोल्ड्स जो थे वो तकरीबन 1.7 करोड़ थे, which was approximately 8%। 2018 के अंदर जो ये सर्वे किया गया उसमें जो लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स थे एज अ परसेंटेज they had reduced from 69% to 43%, and the lower middle income had increased from 23% to 33%, whereas the upper middle had the maximum percentage increase from 7% to 21%. Now, by upper middle, I mean that the income of the household is more than 5.5 lakhs and greater than 27.5 lakhs. And the higher income is where the income of the household is more than 27.5 lakhs per year. So put together, the higher income and the upper middle income was 24% over the next 13 years, whereas it was only 8% in 2005. 2030 के अंदर जो ये फोरकास्ट है, ये सबसे सिग्निफिकेंट फोरकास्ट है। जो लोअर इनकम सेगमेंट है 2005 में 69% से कम होके 15% ही रह जाने की संभावना है, और जो लोअर मिडिल सेगमेंट है वो बढ़ेगा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जो सबसे बड़ी ग्रोथ आ रही है वो अपर मिडिल सेगमेंट के अंदर आ रही है। अपर मिडिल सेगमेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे इनकम 5.5 लाख से लेके 27.5 लाख की रहेगी। तो सबसे बड़ी ग्रोथ जो आ रही है वो अपर मिडिल सेगमेंट में आ रही है, और हायर इनकम का जो सेगमेंट है वो भी डबल हो रहा है, नियरली डबल हो रहा है। दोनों जो ये सेगमेंट्स हैं ये डबल हो रहे हैं, विच मीन्स के, और एक बारी हम लोअर जो मिडिल इनकम से ऊपर जब हम निकल के आ जाते हैं, तो ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, देखिए जब तक आदमी की जरूरतें ही नहीं पूरी होती हैं तब तक आदमी जो है वो छुट्टियों पे जाने में, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे माइग्रेट करने में, या घर पे एयर कंडीशनर लगाने में, इस तरह की चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो एक बारी जो बेसिक्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं कि खाना जो है, अगर आदमी 250 ग्राम खाता है या आधा किलो खाना खाता है पर डे, तो अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो ऐसे नहीं होता है कि वो 10 किलो खाना खाना शुरू करता है। उसकी खाने का जो लेवल है वो उतना ही रहता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर चीजें बदल जाती, खाने की चीजें बदल जाती। अगर आदमी पहले लाइफ बॉय साबुन से नहाता था, अब वो लक्स से नहाना शुरू हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और अगले जो 10 साल की, बाय 2030 की जो हमारी कंट्री की स्टोरी है वो एक्चुअली यही है। तो क्या है कि इकोनॉमी जो है वो चलती खर्चे से, आपका खर्चा किसी और की आमदनी, और ये जो साइकिल है अगर ये वर्चुअस बन जाता है तो इकोनॉमीज बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है।
अगर आज हमारी इकोनॉमी जो है वो 7% से ग्रो कर रही है, तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट वी मे इवन ग्रो बाय 9% प्लस ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और अगर हम यहाँ पे 9% से ग्रो कर पाते हैं और इन्फ्लेशन जो है वो हमारी कंट्रोल में रहती है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी इकोनॉमी का साइज जो है वो अगले 8 साल के अंदर यहाँ से डबल होने में कोई मुश्किल नहीं। तो ये वाली जो स्लाइड है, अगर आप इंडिया की स्टोरी के बारे में मतलब अगर आपको कोई शक है, तो ये स्लाइड जो है वो आपको ऑप्टिमिस्टिक होने पे मजबूर कर देगी। और अ, और क्या है कि जो ऑप्टिमिज्म है वही इकोनॉमीज को आगे लेके जाता है। अब आते हैं अपनी मार्केट के बारे में। हमारी अगर हम दुनिया की मार्केट्स देखें, तो दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रही। इनफैक्ट अगर हम यूएस मार्केट्स देखें तो वो एवरेजली अबाउट 25 से 30% अभी भी डाउन है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के रिसेंट महीने के अंदर देयर हैज बीन कंसिडरेबल रिवर्सल इन देयर ट्रेंड। तो हमारी कंट्री जो थी वो अभी थी बोल रहा हूँ मैं, हमारी कंट्री जो है उसकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बहुत डिपेंडेंट है एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज के ऊपर। लेकिन अभी जो लास्ट 2 साल का डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें हमारे को बहुत हैरानी हो रही है। 2000 अगर आप देखेंगे इस समय, तो जो ये जो ग्रे बार्स हैं वो जो एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है इन इन आवर कंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, जो हमारी पूरी पूरी स्टॉक मार्केट का साइज है जो कि फ्रीली ट्रेडेबल है, उसका परसेंटेज जो है जो एफआईआईज ओन करते हैं वो इस समय 40.5% है। 40.5%। और ये जो लेवल था वो जून 2009 के अंदर था, अप्रोक्सीमेटली इतने का, जब आप में से काफी लोगों को याद होगा कि 2008-9 के अंदर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और उसमें इंडिया की जो स्टॉक मार्केट थी वो ऊपर 21,000 से नीचे गिर के तकरीबन 8,000, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, वहां तक आ गई थी। और उस समय एफआईआईज ने दबा के सेलिंग की थी। कारण इंडिया नहीं था उस समय भी जो कारण था वो उनकी कंट्री यूएसए, वहां पे जो क्रेडिट क्राइसिस रहा था, उनके जो बैंकिंग सिस्टम जो था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, उसके कारण वो सारी सेलिंग हुई। ये स्लाइड जो है मैं उसी को दर्शाने के लिए, ये डेटा जो है वो निफ्टी का है। 2008 के अंदर जो पीक से लेके जो मार्केट जब बॉटम आउट की थी अक्टूबर नवंबर ऑफ 2008 के अंदर, तो फॉल हुआ था 64.56%। फ्रॉम जनवरी ऑफ 2008 से लेके अक्टूबर ऑफ 2008 तक हमारी मार्केट 64.56% नीचे आ गई। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं वो इससे काफी डिफरेंट है। और वो क्यों है डिफरेंट? क्योंकि जो हमारी कंट्री की अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो शेयर है ऑफ हमारी मार्केट का, वो वर्चुअली एट एन ऑल टाइम हाई है, 30.6%। सितंबर ऑफ 2003 में ये 21% तक रह गया। आपको याद होगा कि अगस्त 2013 के अंदर एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस आया था, जिसमें हमारी जो करेंसी थी वो एकदम क्रैश कर गई। रघुराम राजन जी उस समय नए आरबीआई गवर्नर बने थे, और हमारे को स्पेशल एनआरआई डिपॉजिट्स लेने पड़े थे, और स्पेशल एनआरआई डिपॉजिट्स लेने पड़े थे जो कि हमारे को, और एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स। उस
स्थिति से आज की स्थिति जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि छोटे इन्वेस्टर्स के जो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जो फ्लोज हैं वो रिमार्केबली हाई हैं और हर महीने तकरीबन वो बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी मार्केट जो थी वो लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 के अंदर पीक की थी आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन, और वहां से जो उस जो वो गिरी तो वो केवल 18.38% तक गिरी, जबकि जो सेल ऑफ था जो एफआईआई की तरफ से वो 2008 से भी ज्यादा भयंकर था। लेकिन आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी मार्केट में, बोथ एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब चाहे वो म्यूचुअल फंड्स थे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज थे, चाहे वो और इंस्टीट्यूशंस थे, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने हमारी मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। और नीचे ना जाने का कारण भी है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बेटर पोजीशन में है वर्सेस एनी अदर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक अगर नियरेस्ट हम देखते हैं तो इंडोनेशिया की जो इकोनॉमी है वो हमारे हमारे जितनी स्ट्रांग और रिजिलियंट है। और आज भी अगर आप रघुराम राजन जी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाला। यूरोप का हाल आप सब पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर्स में। ऑफ कोर्स ये यूक्रेन का जो वॉर है उसने भी उनकी हालत काफी काफी खराब रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और उसका जो जो रिफ्लेक्शन है वो जो इन्वेस्टर है उसकी पार्टिसिपेशन है अपनी इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट्स में। जून ऑफ 14 के अंदर हमारा जो रिटेल पार्टिसिपेशन थी डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट्स, दैट वाज at its lowest at 15%. Now we are up to about 18.3%, which is still lower than 2008, but it is significantly higher than June of 14. So this gives me a lot of confidence that yes, because our markets are all markets are linked to global circumstances, but our market has the resilience to continue to come back strongly. ये जो बी है इसका ये मैं हिमाचल से हूँ और हमारे यहाँ पहाड़ों में ये मक्खी मधुमक्खी पाई जाती है। इसको अंग्रेजी में बम्बल बी बोलते हैं। अब बम्बल बी का जो डिजाइन है या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा है कि अगर किसी आप एरोनॉटिकल इंजीनियर को या किसी एरोनॉटिकल डिजाइन इंजीनियर को दिखाएंगे तो वो कहेगा ये मक्खी तो उड़ ही नहीं सकती। तो हमारी कंट्री जो है वो कुछ कुछ ये बम्बल बी जैसी। हम खुद ही नहीं मान सकते कि ये हमारी कंट्री कभी कभी ग्रो करेगी जिस स्पीड से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में हमारा एक हम जब हम लोग प्रेजेंटेशंस करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि इंडिया जो है वो 2 स्टेप आगे चलता है फिर 1 स्टेप पीछे भी आ जाता है। तो अब ये जो बम्बल बी वाला जो मेटाफर है, मुझे लगा कि कम से कम इसको आपके साथ साझा करूं। और ये जरूर ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग को विश्वास नहीं है कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी, लेकिन आप देखेंगे अपनी आंखों से, स्वयं अपनी आंखों से, कि ये कंट्री जो है वो उड़ेगी और ऊंचाइयों को टच करेगी। थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख रहा था मैं जिसमें जो जो नीलेश शाह हैं कोटक म्यूचुअल फंड के और प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी हैं,
वो कह रहे थे कि सन 2000 के अंदर जो आज जीडीपी महाराष्ट्र प्रदेश की है, जो आज जीडीपी महाराष्ट्र प्रदेश की है, वो इंडिया की थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि हमारी कंट्री कितनी आगे आ गई। और अभी तो हमारे पास जो पावरफुल स्टेट्स हैं, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स जो हैं, अगर आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर्स, तो उसके अंदर जबरदस्त ग्रोथ आ रही, बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट से ट्रैक कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 2 स्टेट्स हैं, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि कोशिश कर रही हैं, इनफैक्ट इवन मध्य प्रदेश, जो कि अपना जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडस्ट्री चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम देखते हैं तो जो वो जो प्रेजेंटर थे, उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जो कंट्री है, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम का उदाहरण दे रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है अब दुनिया की नंबर 1, 2, 3 ये रैंकिंग्स में रहती है। और वो क्यों रहती है इन रैंकिंग्स में? बिकॉज उनके जो जो प्लेयर्स हैं वो भी टॉप रैंक्ड प्लेयर्स होंगे। अगर आप सूर्य कुमार यादव देखें तो वो आज T20 के टॉप बैट्समैन, जसप्रीत बुमराह देखें तो वो भी मतलब क्रिकेट पूरे सारे फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में वो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। तो बिकॉज एक टीम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीम ऑटोमेटिकली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है। तो अपनी कंट्री में भी अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टेट्स हैं वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही, और इसके कारण ही हमारी कंट्री जो है वो उनकी जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ती जा रही। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो हम सोचते थे 1 लाख करोड़ की अगर फिगर हम टच कर पाए तो बहुत बड़ी गनीमत हो, लेकिन आज 140, 145 तो समझ लीजिए कि बाएं हाथ का खेल हो। और आप थोड़े ही सालों में देखेंगे कि ये 2 लाख करोड़ जो है वो कैसे आ रहा है, ये आपको पता भी नहीं लगे। तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास ताकत है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जो कि आप रोड्स, रेलवेज, आज आज रेलवेज बहुत न्यूज में है क्योंकि मैसिव मॉडर्नाइजेशन हो रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन जो हैं वो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में चल रहा है जहाँ पे 58,000 करोड़ वंदे भारत के ऊपर ही खर्चने की प्लानिंग हो रही है। तो नटशेल में ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो इकोनॉमी थी, जो जो बड़ी है, इनएफिशिएंट है, इनफॉर्मल है। सी, जो जीएसटी के बढ़ने का कारण ये भी है कि हमारी इकोनॉमी इनफॉर्मल से फॉर्मल होती जा रही है। जो ये आजकल हर कोई कैश पेमेंट करने की बजाय यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये जो इकोनॉमी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है न्यू एज टेक्नोलॉजी यूज करके, और प्रोडक्टिविटी जो है, बिकॉज वी आर अ यंग पॉपुलेशन, ये जो स्केल है इस कंट्री में हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम लोग चाइना को देखते हैं कि चाइना इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पॉपुलस कंट्री बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस की है उसने एज अ कंट्री। मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग चाइना के बराबर प्रोग्रेस कर पाएंगे, लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड से या अपने स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर अभी हिट करने वाले हैं। और इसके बारे में हमारे को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अभी दिवाली पे ये क्लिप मैंने सुनी थी, तो मैंने सिद्धार्थ जी, हाँ सिद्धार्थ जी है ना, सिद्धार्थ जी, अरे सिद्धार्थ जी, राजकोट में गाड़ियां कितनी बिकी है दशहरे के दिन? 1000 बाइक्स बिकी है खाली राजकोट की, मेन राजकोट पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बाइक 1000 बिकी है। कारें कितनी बिकी है?
टू व्हीलर 1000, फोर व्हीलर 1600। 1600 1600 60% हाँ, वो सब छोड़ो, हाँ। काम की बात। हाँ। गांठिया और जलेबी 2 करोड़ रुपए की बिके। ये तो बना था। ये है सच्चा गुजरात। ये तो 2 बना करोड़ के राजकोट वाले गांठिया और जलेबी खा गए दशहरे के दिन, सोचो। तो सोचिए, ये तो सिर्फ राजकोट है। हाँ, बाकी कल मैं सोचा था खाली कंजम्पशन मेरे यहीं पड़ा है, सुबह जलेबी फाफड़ा, दिन में साउथ इंडियन मील और रात को कुछ और, लेकिन पता चला हम नहीं, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी पूरा सिद्धार्थ जी, इंडिया। गांठिया और फाफड़ा जो 2 करोड़ का बिका है, विशेष टिप्पणी आपकी इस पर। जय नहीं, सिद्धार्थ जी, हाँ सिद्धार्थ जी है ना, सिद्धार्थ जी। तो गाठिया और जलेबी जो है, इसके अलावा आप नोटिस किया होगा कि कार जो है, वो कार सेल्स जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो 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 एंट्री लेवल गाड़ियां हैं उनकी अवेलेबिलिटी इजी है, लेकिन जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उनमें किसी में 1 साल की वेटिंग है, किसी में 6 महीने की वेटिंग है, किसी में, कईयों में तो 2-2 साल की वेटिंग है। और ये उसके बावजूद है कि जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी वो अब खत्म हो गई। कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, जहाँ पे भी अगर आप देखें कि वो अपर मीडियम, अपर इनकम, अपर मिडिल सेगमेंट या अपर सेगमेंट को केटर कर रही हैं, वहां पे चीजें मिल ही नहीं रही। महंगी घड़ियां, बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो डिमांड है वो आज, ये तो अभी ट्रेलर है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो हमारी कंट्री की जो वेडिंग इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री, वो 130 बिलियन डॉलर्स की है। 130 बिलियन डॉलर्स, $1 बिलियन आज तकरीबन 8,000 करोड़ का है। 8,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 130 बिलियन, ये हमारी वेडिंग इंडस्ट्री है। और वो कंट्री की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। मतलब कारों की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उससे भी ऊपर। तो हमारी कंट्री जो है वहां पे इकोनॉमी, जो कंजम्पशन ओरिएंटेड चीजें हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड कुछ भी रहेगा, वो बहुत बहुत ही जबरदस्त बूम करना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो अपनी वॉलेटिलिटी का जो नेचर है वो छोड़ने नहीं वाली है। हो सकता है कि आगे चल के वॉलेटिलिटी और बढ़े। हमने जो यूक्रेन का वॉर का सिनेरियो देखा है, तो यूक्रेन का वॉर जो है उसने स्टेटस को जो है दुनिया का, पीस का, वो छेड़ दिया है। नॉर्म आमतौर पे देखा ये जाता है कि जब भी कभी कोई ऑल्टरनेट पावर खड़ी होती है किसी एग्जिस्टिंग पावर के सामने, तो दुनिया में बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है। तो चाइना जो है, अगर आई एम श्योर कि आप सब लोग नोटिस कर रहे होंगे कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं पावरफुल हूँ। This will translate into volatility that we have never seen before. वॉलेटिलिटी हमारी हमारी स्टॉक मार्केट्स का नेचर है। हर साल हम तकरीबन 20% ऊपर और 20% एवरेजली अबाउट 15% ऊपर 15% नीचे जो है वो स्टॉक मार्केट जाते हुए आराम से देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे जाने वाले समय में ये वॉलेटिलिटी बढ़े। तो उसका हल क्या है? उसका हल केवल ये है कि हम लोग जो एसेट एलोकेशन है हमारी, उसको, एसेट एलोकेशन को अच्छे से समझ के उसका पालन करें। नाउ एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि हम उस अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग इन 4 एसेट क्लासेस के अंदर, बिसाइड्स रियल एस्टेट वगैरह, उन सब में हम लोग प्रोपोर्शनेटली उनको
डिवाइड करके चलें। और ये जो इक्विटीज हैं एज एन एसेट क्लास, वो ऑफ कोर्स वो हमारे को सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाली हैं आगे चल के, लेकिन उतना ही इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए जिससे कि जो हम गोल ओरिएंट, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो मीट करते हैं। हम लोग आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, नए प्रोडक्ट्स, नए एसेट एलोकेशन के एवेन्यूज लेके जरूर आते हैं। इनवीट्स, रीट्स और बॉन्ड्स लास्ट 2 साल में हमारे बहुत कस्टमर्स ने एक्सपोजर लिया है और उसका स्वाद भी चखा है। आज भी अगर हम देखें तो जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स, अगर अगर हम जो एक सेकेंड, जो मैं इस पे इनवीट्स रीट्स पे बाद में आता हूँ, तो इक्विटीज जो हैं वो हमारे जो म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस रही हैं इन द पास्ट, वो लॉन्ग टर्म में हमारे को आराम से 12% के ऊपर की रिटर्न देती हुई आ रही हैं। और 12% जब मैं कहता हूँ तो 12% क्यों? 12% इसलिए कि इंडिया की जीडीपी अगर कंजर्वेटिवली 6% से बढ़े और 6% की इन्फ्लेशन हो, तो ये इन दोनों का जोड़ जो है वो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है उतना तो आपकी आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको रिटर्न देनी ही पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो इसलिए जो होराइजन है इन इन्वेस्टमेंट्स का, वो 5 साल से हमेशा ऊपर रख के चलना चाहिए। ये हम लोगों ने कुछ फंड्स जो हैं उनको लिस्ट किया है। ये 1993 का फंड है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड। इसने सिंस इंसेप्शन 18% के करीब की रिटर्न दे दी। पराग पारेख, जो कि हमारा जो हम बहुत इंथुजियाज्म से रेकमेंड करते हैं क्योंकि हम लोग को ये फंड हाउस बहुत पसंद है, उसने 2013 से अब तक 9 साल के अंदर 17.77% की रिटर्न दी है। HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसने 1994 से अब तक तकरीबन 13.5% की रिटर्न दी है। 1999 से अब तक इस फंड ने, ICICI का जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उसने 18.61% की रिटर्न दी। 2006 से अब तक ICICI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें एवरेजली एक समय में इक्विटी एक्सपोजर मतलब 50-60% से ज्यादा का नहीं रहता है, वो उसने भी 12% के करीब की रिटर्न दी है। दिस इज अ वेरी लो वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट जिसमें जो हम लोग कॉन्स्टेंटली रेकमेंड करते हैं और अपने कस्टमर्स को चाहते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर वो विशेष ध्यान दें। अब जो इक्विटी है वो तो एक कंपाउंडिंग मशीन है। आई एम श्योर के ये जो कंपाउंडिंग है, इसका जितना हम लंबा समय तक इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एसोसिएट करें, उतने ही बेटर रिटर्न्स आती हैं। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हमारी एक फेवरेट स्लाइड है, जो कि मैं फिर से, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने देखी भी होगी पास्ट में, बट इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। दो बहनें थी, करिश्मा और करीना। दोनों ने 18 साल की उम्र में सेविंग करनी शुरू की और 50,000 रुपए पर ईयर सेव किया 8 साल तक। 25 साल के बाद उसकी शादी हो गई और उन्होंने अपनी सेविंग्स बंद कर दी। इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं की, लेकिन सेविंग्स जरूर बंद कर दी और 60 इयर्स तक वो इन्वेस्टेड रही। उधर जो टोटल जो उनकी सेविंग्स थी वो 4.0 लाख की थी। उनकी बहन करीना, उन्होंने 25 साल पे जाके सेविंग करनी शुरू की और वो भी 35 साल तक 50,000 रुपए पर ईयर सेविंग करती रही। और उन्होंने भी सेविंग्स जो थी अपनी स्टॉप की एट 60। दोनों बहनों ने अपनी जब इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो कंपेयर की, करीना ने करिश्मा से 4 गुना से ज्यादा पैसे सेव किए थे। उसने 4 लाख रुपए सेव किए
और करीना ने 17.5 लाख सेव किए। आपके हिसाब से कौन बेटर, किसने बेटर किया होगा? आमतौर पे हमारे को जो जवाब आते हैं, कभी हम प्रेजेंटेशन लाइव करते हैं तो उसमें करीना का जवाब। अब करीना और करिश्मा ट्विन सिस्टर्स हैं और करिश्मा ने सिर्फ 8 साल सेविंग की और करीना ने 35 साल तक सेविंग की। करीना ने 17.5 लाख सेव किए, करिश्मा ने केवल 4 लाख रुपए सेव किए। लेकिन और ये मान के चलें कि अगर दोनों को सिमिलर रिटर्न मिली 15% की, तो किसका कॉर्पस बड़ा होना चाहिए? करीना का कॉर्पस 5.1 करोड़ का हो जाएगा अगर 15% की रिटर्न मिलेगी। 50,000 rupees a year for 35 years for will result in 5.1 crores अगर रिटर्न तकरीबन 15% की मिल जाती है। और करिश्मा का कॉर्पस जिसने केवल 8 साल तक सेविंग की और उसके बाद डब्बा अपना बंद कर दिया, उसकी सेविंग्स जो है वो 9.2 करोड़ की। तो जो कंपाउंडिंग है वो समय के साथ ही आती है, और जितना हम जल्दी शुरू करें, चाहे हम खुद के लिए या हमारे बच्चों के लिए या हम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के बच्चों के लिए, ये जो इक्विटी की सेविंग्स हैं वो जितना जल्दी शुरू करें हम लोग, उतना हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग आज 17 साल हो गए हम लोगों को ये बिजनेस करते हुए, तो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न से हमेशा कम रहते हैं। अब जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो फंड है, जो 1993 का फंड है, जिसने 18% की रिटर्न दी, उसमें जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स थे उसमें से बहुत ही कम लोग टिके होंगे। फिडेलिटी एक काफी बड़ा इंटरनेशनल फंड हाउस है, उसने एक सर्वे किया कि कौन इन्वेस्टर्स हैं जो कि जिन्होंने मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न्स पाई। तो दो कैटेगरीज जो थी उनने मैक्सिमम रिटर्न्स पाई। एक कैटेगरी जहां इन्वेस्टर्स मर गए थे, मतलब इन्वेस्टमेंट चल रही थी लेकिन वो इन्वेस्टर मर गया था, या किसी ने इन्वेस्टमेंट करके भूल गया। तो हम लोग जो हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, गेंदामल हेमराज फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका काम ही ये है कि क्या इस जो गैप है इन्वेस्टर रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इस गैप को क्या हम लोग कम कर सकते हैं। और वो गैप जो है वो जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, उसी को चेंज करके ही ये गैप कम किया जा सकता है। कोविड के समय हमारे को बहुत फोन आते थे कि भाई पता नहीं क्या होगा। हम लोग भी बहुत डरे हुए थे, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे को भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर दी। लेकिन हमने ये पाया कि जिन इन्वेस्टर्स ने रिडीम किया, उन इन्वेस्टर्स वापस एंटर ही नहीं कर पाए। वो जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो मतलब ये जो 18% की रिटर्न है सिर्फ पेपर पे ही दिखती है, वो एक्चुअल में उनके पोर्टफोलियोज में नहीं दिखती। तो हम लोग जो हैं वो आपके साथ, आपके फैमिलीज के साथ मिलके यही काम, हमारा मेजर काम यही है कि क्या हम आप लोगों के साथ मिलके ये जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है और जो इन्वेस्टर रिटर्न है, इसके बीच का जो ये बिहेवियर का गैप है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं किसी तरीके से? सोचिए जरा। इनवीट्स और रीट्स के बारे में मैंने पीछे बताया था कि एसेट एलोकेशन कैसे कैसे करनी है हम लोगों को। तो इनवीट्स और रीट्स उसका एक बड़ा अच्छा पार्ट है। आईआरबी का इनवीट हमारे काफी कस्टमर्स के पास है, जो कि आज तो 66 रुपीज का भाव हो गया है। तो जब हम लोगों ने एवरेजली तकरीबन 40-45 रुपए का खरीदा हुआ है, और अभी भी कभी भी खरीदते रहते हैं 50-55 रुपए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारे हिसाब से बहुत अभी भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और तकरीबन 12% के करीब की रिटर्न दे देती है।
पावर ग्रिड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, आज 130 रुपए का भाव है, वो भी तकरीबन 9.5% के करीब की रिटर्न दे रही है। ब्रुकफील्ड जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो वो आज के प्राइस के हिसाब से तकरीबन 7.5% की रिटर्न देती है, और इसके अंदर रियल एस्टेट के कारण प्राइस अप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये हम लोगों को बहुत हेल्पफुल रहती हैं टू अपनी एसेट एलोकेशन को, अपनी डाइवर्सिफिकेशन को, अपनी एसेट एलोकेशन को संभालने में। पास्ट में भी हम लोगों ने आप लोगों तक ये काफी अच्छे बॉन्ड्स जो हैं, जो कि हाई यील्डिंग बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे हमारे को लगता है सेफ्टी है, वो हम लेके आते रहे हैं। आज भी यूपीपीसीएल का बॉन्ड है, 9.6% की यील्ड है। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बॉन्ड है जो 9% की रिटर्न देते हैं। पीरामल कैपिटल का जो बॉन्ड है वो 11% से की रिटर्न घट गई है, 10.2% के करीब की रह गई है। चोलामंडलम फाइनेंस का बॉन्ड तकरीबन 9%, 8.5% ही है आज की तारीख में। तो ये जो कैटेगरीज हैं, वो हमारे को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिनमें इन्वेस्टर्स जो हैं उनको पैसे अपने इन्वेस्ट करने चाहिए। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है, बट ये है कि ये एवेन्यूज हैं जो कि हम लोग आपके लिए कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं अब समाप्त करूंगा कि आज की तारीख में कोई अगर कंट्री दुनिया में है जिसके पास नई मैन्युफैक्चरिंग, जो नया, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो थी, वो सबसे पिछड़ा सेक्टर था, और अगले 10 साल के अंदर हमारे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी बहुत ही अच्छा करने वाला है। और साथ ही जो डिजिटल इकोनॉमी है, वो कंट्री में जो पैसे की एफिशिएंसी है और जो काम करने की एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा रही है। हमारी कंट्री में हम अगर मैं कुछ दिन पहले एक सर्वे पढ़ रहा था कि अ, अ, दुनिया में टेक्नोलॉजी ने लास्ट 10 साल के अंदर बहुत जबरदस्त चेंज किया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है, वो अगर आप देखेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बहुत पॉपुलर हुई हैं और इन कंपनीज ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन ओवरऑल काम की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। मुझे लगता है कि अगला डेकेड जो है, वो इन कंपनीज का नहीं रहने वाला है। वो हमारे कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो कंपनीज इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगी, जो कंपनीज इंडिया की जो कंजम्पशन को सर्विस करेंगी, इंडिया में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाएंगी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हम लोगों ने लिस्ट आउट किए हैं, जो कि हम लोगों को लगता है कि ये सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से ये जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हमने अभी पीछे आपके साथ ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन बात की है, ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे को लगता है कि हमारे को स्टॉक मार्केट द्वारा या इन्वेस्टमेंट इनटू इनबीट्स एंड रीट्स, या इन्वेस्टमेंट इनटू म्यूचुअल फंड्स, या इन्वेस्टमेंट्स इनटू बॉन्ड्स, इसके द्वारा इन सब चीजों का हमारे को फायदा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आई हैव कम टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। तो अगर कोई सवाल है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दैट। थैंक यू। अनम्यूट करना पड़ेगा भाई। Give me the hello. हाँ जी Thank you, सर। Jain Sab. Thank हाँ you, जी। Jain Sab. Very enlightening. हाँ I जी। heard everything. I knew something before also, लेकिन अच्छा लगा सुन के दोबारा। आपके लिए तो थोड़ा सा रिपीट ही था। नहीं 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 नहीं, ऐसा रिपीट नहीं था। There was something new. हाँ जी। बहुत बढ़िया लगा सर। Thank you. Thanks for the presentation. थैंक यू सर। थैंक यू सर।
गुड मॉर्निंग जैन साहब। मैं नेहा बंसल हूँ। हाँ जी नेहा जी, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। वाइफ ऑफ मिस्टर अमित बंसल। हाँ जी, मेरे को मालूम है जी, थैंक यू। मुझे ना थोड़ा सा आईपीओज के बारे में जानना है कि आप किसी आईपीओ को कैसे एनालाइज करें कि आपको किस आईपीओ में जाना चाहिए। मैम, हम लोग जो जितने भी आईपीओज आते हैं ना, हमारे प्रिंसिपल्स हैं बॉम्बे में, मैसेज दलाल एंड भरूचा। वो सारे आईपीओज की जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं या जो भी मैनेजमेंट के साथ मीट्स होती हैं वो अटेंड करते हैं, और अच्छा। उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो हम्म। एनालाइज करते हैं। और हर आईपीओ के ऊपर सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, इसकी रिकमेंडेशंस हम लोग जरूर अपने कस्टमर्स को भेजते हैं। तो अगर अगर आपके पास नहीं आ रही है तो हम लोग हमारे हमारे सूरज जी जो हैं हमारी टीम में, वो इंश्योर करेंगे कि आपके पास ये रिकमेंडेशन आए आए। और क्या क्या रहता है कि आईपीओ जो है एज अ एज अ एज अ कॉन्सेप्ट, तो आईपीओ तभी आता है जब कंपनी जो है वो अपनी पूरी मतलब जो अपनी समझ लीजिए कि जो रिसेंट ऊंचाई पे होती है, और वो पैसा तभी इकट्ठा करती है जब उसको लगता है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। ओके। हम लोग ये जरूर रेकमेंड करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन फायदा ज्यादा तब होता है जब आईपीओ में अप्लाई जब आईपीओ कंपनीज जो हैं लिस्ट हो जाती हैं, उसके साल भर के अंदर उनकी जो ट्रू वैल्यू है वो मार्केट असेस कर लेती है। अगर आप ने नोटिस किया होगा कि अभी रिसेंटली जो हाई प्रोफाइल आईपीओ थे, जैसे नाइका था, पॉलिसी बाजार था, हाँ हाँ। जोमेटो था, पेटीएम था, वो जब आईपीओ आया उसके बाद तो बहुत क्रेज था उनका। और लेकिन उसके बाद जब जब जो रियलिटी चेक मिला, जब उनके रिजल्ट्स छपने शुरू हुए, तब इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि ये कंपनियों में उतनी ताकत नहीं है जितनी जितनी आईपीओ के टाइम पे हाइप हो गई थी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, आप तक लेके आए और उनको कॉन्स्टेंटली उनको रिव्यू करते रहें आपके साथ। लेकिन अब हमारे को लगता है कि जैसे ये पॉलिसी बाजार हो गया, जोमेटो हो गया, नाइका हो गया, ये कंपनीज बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, और इनको हमारे को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वी विल इंश्योर कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। और अदरवाइज ये जो मैंने अभी आपसे चार पांच जो जो रिसेंट समझ लीजिए साल भर पहले जो आईपीओज आए थे, उनमें डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आपको देखना चाहिए कि ये कंपनीज कैसी चल रही हैं, और अगर आप चाहें तो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं ये। ओके। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि आईपीओज में जो शेयर मतलब जो भी उसका लॉट साइज जो भी होता है वो हमेशा इंक्रीज ही हो जब वो कंपनी लिस्ट होगी। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो उसका लिस्टिंग के ऊपर वो हमेशा उसका प्राइस बढ़े ही बढ़े। कई अच्छा। आईपीओ उनके आईपीओ घट उनके प्राइसेस घट भी जाते हैं। और हो सकता है कि इनिशियली जब हम अप्लाई करें तो हमारे को हफ्ते 10 दिन के अंदर अच्छा गेन भी मिल जाए, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वही अल्टीमेटली उसके जो लॉन्ग टर्म प्राइस जो है उसको डिटरमिन करता ओके। है जी। थैंक यू। जी वेलकम मैम। And Vivek, I think regarding actually what करना है दीपा जी, आपका recommendation आपका वॉइस जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। एक मिनट माय पॉइंट वाज कि आईपीओ जिसमें हमारे को लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, अवॉइडेबल है, तो वो भी रिकमेंडेशन हम देते हैं फॉर द इन्वेस्ट। करेक्ट।
So I think if there are no more questions, then I'd like to just express my gratitude again for all who have joined us. And in case you still have any questions, kindly feel free to email us at these below mentioned addresses, and we'll be very happy to respond. कोई भी अगर आपको लगे कि कोई सवाल आपके पास बाद में भी आता है और हमारे को लगता है कि आपको लगता है कि हम लोग उस सवाल का जवाब आपको चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली आपको विल रीच आउट टू यू एंड रिप्लाई.